لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين والصلاة والسلام على أمير المؤمنين الصلاة والسلام على الحسن الحسين زینب کلثوم ابیہا حضرت فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ. الصلاة والسلام على الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہادین المہدیین لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ جو کائنات کا خالق ہے. وہ یا ربا محمد وآل محمد، اے محمد وآل محمد کو خلق کرنے والے پروردگار، تیری حمد و ثنا سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں کر سکتے. تو ایسا معبود ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر رحم و کرم کرتا ہی جا رہا ہے. تو ایسا بخشش کرنے والا ہے کہ اپنے بندے جو بھی راہ راست پہ آ جائے ان کو جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے. وہ معبود پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں نہیں معلوم اس رات کی قدر کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. میں نے اس رات کو، قدر والی رات کو نازل کیا ہے. تمہیں نہیں معلوم اس رات کی قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر، یہ رات اتنی قدر والی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. یہ رات، پوری رات جب تک فجر نہ ہو جائے، اللہ کے جانب سے، اللہ کے حکم سے ملائکے اور روح سلامتی ہی سلامتی، مبارکباد ہی مبارکباد لے کے آتے ہیں. یہاں پہ جاننا چاہیے کہ آیت اللہ فاضل انترانی نے ان کے کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ رات سے مراد جناب سید و نساء العالمین ہے. یہ قدر والی رات سے مراد جناب سید و نساء العالمین ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ قرآن صامت ہے جسے قرآن کہتے ہیں ہم. یہ قرآن ناطق ہے جو اہل بیت علیہم السلام ہیں. قرآن ناطق اور قرآن صامت. قرآن صامت کو پروردگار عالم نے تبلیغ کرنے کے لیے قرآن ناطق کو ساتھ ساتھ بھیجا تاکہ قرآن صامت صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے آشکار ہو سکے، ہم تبلیغ ہو سکے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے سلسلے میں کئی فضائل ہیں. اسوہ حسنہ کہا پروردگار عالم نے محبوب الہ العالمین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسوہ حسنہ کہا مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو. پھر اسوہ حسنہ نمونہ عمل کہا جناب سیدۃ نساء العالمین کو. یعنی اسوہ حسنہ نمونہ عمل مردوں کے لیے ادھر 13 معصوم ہیں
ادھر نمونہ عمل اسوہ حسنہ عورتوں کے لیے یہ ایک شہزادی ہے، یعنی ایک شہزادی کا مرتبہ یہ 13 معصومین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اتنا پروردگار عالم نے جناب سیدۃ النساء العالمین کو فضیلت بخشا. مولا سے پوچھا جاتا ہے مولا خانہ کعبہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے جو بیت اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا بیت اللہ ہے، جو مرکز ہے دنیا کا. اس کا اوریجنل بیت المعمور آسمانوں میں ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اس کا پھر اصل کعبہ عرش رحمان پر ہے جہاں ہم 14 طواف کرتے ہیں. مولا آپ 14 اس نور کو، اس خانہ کعبہ کو جو عرش رحمان پر ہے اسے طواف کرتے ہیں. ہاں وہ کعبے کے گرد ایک نور ہے، وہ نور کو فاطمہ کہتے ہیں. ہمارے 13 معصوم اور اللہ کے نور کے بیچ فاطمہ کا نور ہے جہاں عرش رحمان پر خانہ کعبہ ہے، جو اصل کعبہ ہے، جو وجود کعبہ ہے. وہ کعبے کے نور کو، پروردگار کے نور کو ایک نور احساس لیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. اس نور کو فاطمہ کہتے ہیں. اور اس نور کے بعد ہم یہ 13 معصوم یہ 2 نور کو طواف کرتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. عزیزانو یہ نمونہ عمل ہے فاطمہ. کیسے نمونہ عمل کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر. یہ جناب سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کی سلام اللہ علیہ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی. تو دوسرے دن جناب حضور امام صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مولا علی سے پوچھتے ہیں یا علی میری بیٹی کیسی لگی؟ تو مولا فرماتے ہیں نعم الاولا و طاعت اللہ. اے حبیب الہ العالمین آپ کی بیٹی میرے لیے مددگار بنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت کے لیے مددگار پایا یا رسول اللہ. جو مشکل کشائے العالمین مولا علی ہیں ان کی مشکل کشائے علی کو فاطمہ کہتے ہیں. یہ قرآن سام ناطق ہیں. یہ فاطمہ نمونہ عمل ہے سید عورتوں کے لیے. سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدہ ہے عالمین کی عورتوں کے لیے. سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، عورتوں جنت کی سردارہ ہے. کون؟ فاطمہ. فرات کوفی میں امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اللیل فاطمہ والخدر اللہ. چھٹویں امام فرماتے ہیں اللیل فاطمہ، وہ خدر والی رات کو فاطمہ کہا ہے چھٹویں امام علیہ السلام نے. اور والخدر اللہ، اللہ خدردان ہے، وہ خدردان پروردگار ان کو خدر کرتا ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. وہ رات جسے کہتے ہیں فاطمہ کو، اللیل فاطمہ، وہ رات کو فاطمہ کہا ہے امام جعفر صادق نے. وہ اللہ یہ لیل کو، یہ رات کو اللہ قدر کرتا ہے. لہذا ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ یہ لیل کو، یہ فاطمہ کو ہم قدر کریں، تعظیم و تکریم کریں، محبت کریں، مودت کریں. یہ فضیلتیں جناب فاطمہ کے اتنے ہیں کہ اللیل فاطمہ والقدر اللہ، یہ رات قدر والی رات ہے، اللہ اس رات کو قدر کرتا ہے. اور جو رات سے مراد فاطمہ ہے، فاطمہ قدر اللہ کرتا ہے. یہ فضیلتیں اس میں 2 پائی جاتی. قرآن ناطق یعنی فضیلت قرآن کو، جو صامت قرآن ہے اس کی فضیلت جو رات بھر قرآن نازل ہوئی. اور دوسرا پہلو دیکھیں تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو امام زمانہ فرماتے ہیں میری دادی کے حق میں یہ رات ہے، یعنی جسے رات کہا ہے پروردگار، وہ رات میری دادی ہے، جس کے آغوش میں 11 امام پلے ہیں،
11 इमाम उभरे हैं, 11 इमाम आए हैं, उसे फातिमा कहते हैं। जसबुल खुलूफ फारसी किताब है, उसमें मौला अली से नकल किया जाता, जनाब सलमान फारसी से नकल किया जाता है। कौन सलमान? सलमान मिन्नी अहले बैत, ये सलमान अहले बैत में से हैं। जो हम अहले बैत कहते हैं उनमें सलमान भी पाए जाते हैं। वो मकाम है जनाब सलमान अलैहिस्सलाम का। मौला कायनात जब उनके दर पे एक सायल आया, आके कुछ चाहा, तो मौला के पास गुर्बत के मारे कुछ भी नहीं था, तो सलमान वहाँ भी बैठे थे। सलमान से मौला ने कहा, सलमान ये सैयदा का चादर ले जाओ और बाजार में बेच के लाके वो साइल को पैसे दे दो। किसे दे रहे हैं मौला कहना चादर जहरा? जनाबे सलमान, जो सलमान व मिन्ना अहले बैत, अहले बैत के फर्ज को देते हैं, अहले गैर को नहीं दे रहे हैं। सलमान की जुर्रत नहीं थी कि कुछ कहें। रोते हुए वो चादर को हाथों में लिया, कुरान के मानिंद उठाया और बाजार में जाने लगे। जाते जाते रोते हैं और चादर को देखते हैं, रोते हैं और चादर को देखते हैं। जुर्रत नहीं है कि फातिमा का चादर मैं बेचने लाया हूं, ये कहने की जबान में जुर्रत नहीं है। ये देख के एक बूढ़ा सहाबी जनाब सलमान के करीब आया। ये चादर को जब सलमान हाथों में उठाया, कुरान के मानी बाजार में जा रहे हैं, वो बूढ़ा यहूदी था, मुसलमान नहीं था। वो दौड़ते हुए जनाब सलमान के पास आके कहता है, ऐ शख्स ये क्या है? तो सलमान कहते हैं ये चादर है। ये चादर को क्या करोगे? सलमान की जरूरत नहीं कि मैं बेचने वाला हूँ। सलमान ने रोते हुए चादर की तरफ देखा। बूढ़ा यहूदी समझ गया, समझ के कहता है, ऐ सलमान मैं चादर को खरीदना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे घर के पास आ जाओ। गया, तौरात को उठाया, तौरात के एक सहीफे को देखता था। पेशन गोई तौरात में लिखा हुआ था कि नबी के घर पे इतनी गुर्बत आ जाएगी कि नबी के बेटी का चादर बाजार में बेचने के लिए लाया जाएगा। किस पे लिखा है? तौरात में लिखा हुआ है। ये तौरात के अल्फाज को देखता है और चादर को देखता है, तौरात को देखता है, चादर को देखता है। एक मर्तबा देखने के बाद जनाब सलमान ने पूछा, आखिर लेना चाहता है नहीं? तो सहाबी ने कहा, हाँ लूंगा, मगर मस्जिद नबवी में लूंगा, ताकि मुसलमान जान सके ये चादर की हकीकत। यहूदी कहता है। एक मरतबा जनाब सलमान और बूढ़ा यहूदी मस्जिद नबवी की जानब गए। जाके मस्जिद नबवी में लोग थे, वहाँ पे बूढ़ा सहाबी कहता है, अफसोस है मुसलमानों, नबी के घर के ऊपर इतनी गुर्बत, वो भी सायल को पैसे देने के लिए। कि चादर फातिमा बाजार में आई हुई है, आप यहाँ ऐशो आराम कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। ये इबादत नहीं, वो इबादत अफजल है जो रसूल ने बता के गए हैं। सन्नाटा छा गया मस्जिद नबवी में। एक मरतबा वो बूढ़ा यहूदी ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के, कितना हदिया चाहते हो सलमान? सलमान ने कहा, मैं हदिया भी नहीं बता सकता जनाब सैयदा की चादर का। अज़ादारों, वो बूढ़ा खुद अपने जेब से जितना चाहता था उतना निकाला और सलमान को दिया। मरतबा सलमान ने हाथों में जो चादर था, वो चादर को जनाब सलमान ने बूढ़े साहब यहूदी की तरफ बढ़ाया। यहूदी ने कहा, सलमान मैं जब यहूदी था चादर को नहीं छिया, अब तक कलमा पढ़ा हूँ, मुसलमान हो गया हूँ, अब चादर में जनाब सैयदा के चादर को हाथ लगाऊंगी, मेरी जुर्रत है। अज़ादारों, ये फातिमा है, ये फातिमा की चादर है। जनाब सैयदा जब घर में थी, मौला कायनात हसनैन मस्जिद में नमाज के लिए गए थे, फिर दूसरा सायल आया। शादी होके नया था। एक मरतबा दूसरा साहबी आके पूछता है, गरीब आया है, कुछ कपड़े, पुराने कपड़े हैं तो दे दो। एक मरतबा जनाब सैयदा ने उसकी आवाज़ को सुना, उठा, क्या दूं? वो कहता है, पुराने चादर दो। परवरदिगार कुरान में कहता है,
जो तुम जो भी किसी को देना चाहते हैं, खाना देना चाहते हैं, तो तुम जिस खाने को महबूब जानते हो वो खाना दो। अगर कपड़े देना चाहते हो तो जिस कपड़ों को तुम महबूब जानते हो उस कपड़ों को दो। जो भी चीज़ साहिल को देना चाहते हैं तो ख़राब चीज़ ना देना, तुम महबूब जानते हो वो चीज़ को दो, कुरान का हुक्म है। यहाँ जनाब सैयदा उठी, एक मरतबा शादी के कपड़े जो थे, शादी का लिबास जो नया था, महबूब तरीन था, वो शादी का लिबास लाके वो साहिल को दे दिया। ये है फातिमा। कौन बयान कर सकते सिवाय अहले बैत के? कोई भी उनके फज़ाइल को अल्लाह के सिवा कोई भी बयान नहीं कर सकते। ये फातिमा हैं। जब फातिमा ज़ख्म आलूदा होके बिस्तर पे लेटी थी, मौला कायनात बाहर से एक मरतबा आते हैं, आके जनाब सैयदा को सलाम करके जनाब सैयदा के बिस्तर के पास बैठते हैं कि पूछते हैं सैयदा तबीयत कैसी है? तो सैयदा कहती है, या अली मैंने सुना है कि आपको लोग सलाम नहीं करते। तो मौला ने रोते हुए बिस्तर पे से उठ के ज़मीन पे बैठ गए। बैठ के कहता है, सैयदा मुझे सलाम करना तो छोड़ दो, मैं सलाम करता हूँ तो जवाब भी नहीं देते। ये आलम गुरबत या मज़लूमी है सैयद अली की। एक मरतबा जनाब सैयदा कहती हैं, या अली बिस्तर पे आओ, मैं वसीयतें करना चाहती हूँ। जनाब सैयदा वो एक एक वसीयत करते करते आई और कहती है, या अली मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और उससे अब्बास पैदा होगा। अब वो अब्बास को मेरे हाथों से सिले हुए कपड़े रखी हूँ, वो कपड़े पहनाना। अब्बास का ये मुकाम है जिसे जनाब सैयदा सलाम करे, जिसे जनाब सैयदा अपने हाथों से सिले हुए कपड़े अता करे, उसे अब्बास कहते हैं। जब जनाब सैयदा वसीयतें करते करते मौला कायनात से कहती हैं, मौला अगर कोई गलती मुझसे सरजद हुई है तो माफ़ करना। जब गलती का लफ्ज़ जनाब सैयदा के ज़बान अक़दस से आया तो मौला फिर रोने लगे। लोग कहती है, फातिमा तुम और गलती ये नहीं हो सकता। फातिमा मैं खुद शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम सैयदतुन निसाइल आलमीन है, उम्मे अबीहा है। तुम्हारे दर पे फरिश्ते सजदे करते हैं, तुम फटा हुआ लिबास पहनकर मेरे सामने फिरती हो, मैं शर्मिंदा हूँ फातिमा। तुम चक्की पीस पीस पे इसके हाथों को खून आता है, इंगली से खून जारी होता है फातिमा, मैं शर्मिंदा हूँ फातिमा। फातिमा तुम्हारे शिकम पे दरवाजा गिराया गया है, मैं शर्मिंदा हूँ फातिमा। ये कहते कहते मौला कायनात रोते हैं। फिर जनाब सैयदा कहती हैं, या अली मेरी वसीयतों में से एक वसीयत ये भी है, या अली गस्सिलनी बिल्लैल कफ़िन्नी बिल्लैल दफ़िन्नी बिल्लैल। या अली मुझे गुस्ल रात को देना, कफन रात को पहनाना और दफन रात को करना। मौला ने पूछा, या फातिमा क्यों? तो फातिमा कहती है, अरे या अली ये इस वजह से कहती हूँ कि मेरे बेटे जो मलून आके मेरे दर को जलाया था और उस दर को मेरे शिकम पे गिराया था, उसके कीले मेरे ऊपर मेरे शिकम में चुप चुके थे। ये सब मसाइब मेरे बच्चे हसन और हुसैन ज़ैनब व कुलसूम देखे थे। ऐसा ना हो जाए कि उनका गम ताज़ा हो जाए और ज़ियादा हो जाए उन मलूने के ऊपर। तो मलून को देख के ताकि उन मलूने मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए, ताकि मेरे बेटे के गम को ज़्यादा ना कर दे। दादारो ये मकाम से भी आगे हुए। और अली ने एक मरतबा जब रात हुई तो जनाब हसन को देखा। जनाब हसन मुसल्ले के ऊपर बैठे जनाब सैयदा के लिए दुआ कर रहे हैं। जनाब सैयदा जब आंख बंद करके तस्बीह पढ़ रही है, जनाब मौला कायनात हसन के पास गए, हसन को इशारा किया, हसन मुसल्ले से उठे, हसन को गोद में लिया और बाहर लाया, लाके मिट्टी पे मौला कायनात बैठ गए। बैठ के कहते हैं, बेटा हसन मेरे बाद वारिस इमाम तुम ही हो, बताओ बेटा तुम्हारे अम्मा को जख्म कहाँ कहाँ हुआ है, दर्द कहाँ कहाँ से आता है, एहसन बताओ। एक मरतबा जनाब हसन ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और बाबा के सर पे रखे, कहा बाबा मेरी माँ मिसवाक भी नहीं कर सकती क्योंकि मलून ने मेरी माँ के
गालों पे तमाचा मारा था, वो तमाचे के सबब से मेरे माँ के दांत हिल गए हैं, लिहाजा मिसवाक भी नहीं कर सकती। और फिर हसन बाबा के सर पे हाथ रख के ये कहते हैं, बाबा बाबा दांत ऐसे हिल गए कि मिसवाक भी नहीं कर सकती। बाबा मेरी माँ नमाज में क़ियाम भी नहीं कर सकती, क्योंकि शिकम पे जो जख्म हुआ है उस शिकम के जख्म से झुक गई है, लिहाजा नमाज भी खड़े होकर क़ियाम के साथ नहीं पढ़ सकती, झुक के पढ़ती है। रसूल का आसा कांधे में लिए। अज़ादारों, फिर जनाब हसन मौला कायनात के सर पे हाथ रख के कहते हैं, बाबा मेरी माँ खुनूद के लिए हाथ उठा नहीं सकती, क्योंकि एक हाथ शिकम पे रहता है और दूसरा हाथ यहाँ जो मौलूद हाथ पे जख्म करा है तलवार लेके वो हाथ पे रखती है, लिहाजा बगैर हाथों को उठाई हुई कुनूत पड़ती है। बाबा फिर हसन फरमाते हैं, बाबा मेरी माँ तस्बीह सीधे हाथ से नहीं पढ़ सकती। मौला ने कहा क्यों? क्योंकि बाबा तुम को जब मलाइनों ने गले में रस्सन बांध कर खींच के ले जा रहे थे, उस वक्त मेरी माँ ने तुम्हारे काबा पकड़ लिया, तो माँ को छुड़ाने के लिए मौलाउन ने तलवार के दस्ते से हाथों पर मारा, तो अंगलियां शहीद हो गई। उस सबब से तस्बीह भी सीधे हाथ से नहीं पढ़ सकती। बाबा अज़ादारों, अजीज अज़ादारों, ये मज़ाहिब फातिमा कौन बयान कर सकते? कोई इमाम ज़माना ही बयान कर सकते जो पर्दे गैब में है। अज़ादारों, जब मौला कायनात के मसाइब जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने अंदर से सुनते थे, रोते थे, सुनते थे, रोते थे। अज़ादारों, जब जनाब सैयदा को कफन दे चुके और जनाजे में लिटा चुके, एक मरतबा जनाब मौला कायनात ने फरमाया, हसन हसन तुम पीछे जाओ, हुसैन को पीछे खड़ाओ, जय फिदा तुम एक मरतबा एक तरफ आओ, मैं एक तरफ से जनाजे को उठाऊंगा। बाहर जाने के बाद लोग आ जाएंगे, फिदा तुम हट जाना और दूसरों को सामने का हिस्सा दे देना। अल्लाह ने ये हुक्म करके जनाजे को उठाया गया। जनाजा दरवाजे तक ले गया। वहां जाने के बाद एक मरतबा मौला ने दरवाजा खोल के फिर दरवाजे से झट से बंद दिया। बंद के कहते हैं, हसन जनाजे को फिर पीछे हुजरे में ले चलो। एक बार इस तरीके से 7 मरतबा हुआ। जब 7वीं मरतबा हुआ तो जनाब हसन जनाजे के साथ साथ झुक के जनाब मौला कायनात के पैरों पे हाथ रख के पूछा, बाबा जब जनाजा बाहर नहीं ले जाना है तो क्यों उठा रहे हो, क्यों पीछे लाद रहे हो? अज़ादारों, एक मरतबा जनाजे को वहाँ रखा गया हुजरे में और मौला कायनात हसन का हाथ पकड़ा। हसन को कहा कि हसन हुसैन को ज़ालिब कुलसुम को कमरे में जाने के लिए हुक्म दो। एक मरतबा ऐसा ही किया गया। हसन का हाथ पकड़े मौला कायनात, दरवाजे पे आके दरवाजे को खोलते देखे तो औरतें लकड़ियां लिए खड़े हुए हैं। कहते हैं, अय अली तुमने हमारे मर्दों को मारा है, हम आज तुमको मारने के लिए आए हैं। हाय रे गुर्बत अली, हाय रे मज़लूमी अली। परवरदिगार इस खलील को सामने सजा की सेवानियाँ मलिक से देखने वालों से कबूल फरमा। अय अल्लाह, हमारे बेशतगान के महब्बत हज़रत को बेशतगान के गुनाह कबीरा सग़ीरा माफ़ फरमा, उनकी ख़बर में रहमत बरकत नियामत नाज़िल फरमा, उनको तेरे जवार रहमत में जगह इनायत अता फरमा। इमाम आज़म इस्लाम के साए में रहना नसीब फरमा, उनको तेरे जन्नतों में जगह अता फरमा। अय अल्लाह, हम तमाम के सबके गुनाह कबीरा सग़ीरा माफ़ फरमा। अय अल्लाह, जो औलाद के तलबगार हैं उनको औलाद से माला माल मौला कायनात मौला हुसैन के सदक़े से अता फरमा। अय अल्लाह, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के संतान को दीनी दुनिया में रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा। रहमतुल्लाह अलैहि मौला कायनात जनाब अमीर मोमिनीन सैयद आलमीन के संतान के दुनिया के और आखिरत के घरों पर रहमत बरकत नियामत नाज़िल फरमा। अय अल्लाह, जो सफ़रों में है मौला हुसैन के सफ़र के सदक़े से उनके सफ़रों को बेखतर फरमा। जो शादियों के तलबगार है उनको शादियाँ जल्द होना नसीब फरमा। अय अल्लाह, हम तमाम को क़ुव्वत हैदरी जनाब अली इस्लाम के सीने अक़दस से होना नसीब फरमा। अय अल्लाह, हमारे होठों पे जनाब अली इस्लाम के तबस्सुम होना नसीब फरमा।
بیمار کربلا کو سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا کل عاجلہ ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ بچوں کے سر پر ان کے والدین کا سایہ رہنا نصیب فرما۔ جو بیمار ہے آپریشن ہوئی ہیں ان تمام کے آپریشن کامیاب و کامران ہوتی ہے، بیماریوں کی شفا کل عاجلہ ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے ہر وقت کے نیک دعاؤں کو مستجاب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ناصر میں شمار فرما، ہم سے راضی ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔